اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے یوریا کھاد کی قلت کا۔ جنوبی پنجاب میں یوریا کھاد کی قلت برقرار ہے۔ گندم کی فصل متاثر ہونے لگی ہے۔ کاشتکاروں کا صبر جواب دے گیا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی۔ لیا کے وکیل بھی کسانوں کے حق میں میدان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ۔ بھاول نگر میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان ڈی سی آفس کے باہر سراپا احتجاج، انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ وہ یوریا کھاد کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ چوبارہ کے کاشتکاروں کا بھی صبر جواب دے گیا۔ کھاد نہ ملنے پر احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چوبارہ میں کھاد موجود ہے مگر بلیک میں مل رہی ہے۔ حکومت فصلیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج صرف اور صرف یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا ہے۔ اپنی حکومت دیکھوں، ساری اپنی حکومت کریے، سارے اپنے ایم پی این، سارے اپنے ایم ایل اے اساں ووٹ دے کے انہوں نے بھیجے۔ اور یاد رکھو اے بھی اعزاز دوبارہ دی عوام نو ویندے۔ لیا میں کھاد کی عدم دستیابی پر وکلاء میدان میں آ گئے۔ مظاہرین کی قیادت صدر ڈسٹرکٹ بار مہر حبیب اللہ نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ ہیں۔ ملتان کے کسانوں کے لیے بھی کھاد کا حصول مشکل ہو گیا۔ حکومتی دعوے محض جھوٹ نکلے۔ چیئرمین کسان اتحاد چودھری محمد انور کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کے سیل پوائنٹس پر کھاد موجود نہیں۔ کسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ڈی اے پی کی ضرورت تھی، ایک بھی بوری مارکیٹ میں ڈی اے پی کی نہیں مل رہی تھی، اور بلیک میں کوئی 9,000 دے رہا تھا، کوئی 10,000 میں دے رہا تھا۔ اب ڈی اے پی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، گندم کاشت ہو چکی ہے، اب ڈی اے پی عام مارکیٹ میں پڑی ہے۔ کسانوں نے حکومت سے یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیری خان کے کاشتکار یوریا کھاد سے محروم ہیں۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے ڈی اے پی کھاد نہیں ملی، اب یوریا دستیاب نہیں ہے۔ گندم کی فصل پیلی پڑ رہی ہے۔ یہی حال رہا تو ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ رضا ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان میں یوریا کھاد کی قلت، کسانوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ 2 بوریوں کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ چوری چھپے یوریا کھاد کی بوری 2400 روپے کی مل رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ 1780 روپے میں شناختی کارڈ پر صرف 2 بوریاں کھاد دی جا رہی ہیں۔ صبح سے لائن میں لگے ہیں۔ 2400 روپے یوریا تو کڈے ونجے 9000 روپے 10000 روپے بوری چاہتی تھی ڈی اے پی دی۔ دانے دا ریٹ 1800 روپیہ۔ انہیں تو کتے نہیں بندا ای گال دا۔ آدھی گھڑو پانی لامڑے پانی سکنا دے غریب لوگ کو کیڑے مروں بگڑو 600 روپے جاڑی دینن اسا کیڑے بنوں اتنا نہیں سیندے کھاد نہیں ملتی۔ کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کھاد کا حصول مشکل ہو گیا۔ یوریا نہ ڈالنے سے گندم کی فصل پیلی ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان۔ تونسا شریف میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ چولہے ٹھنڈے پڑنے پر خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ انڈس ہائی وے کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں عظمت بزدار۔ گیس بحران سے تنگ تونسا شریف کی خواتین سڑکوں پر آ گئیں۔ گیس آفس کے سامنے انڈس ہائی وے روڈ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین ممبران اسمبلی پر برس پڑی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے ووٹوں سے بننے والے ارکان اسمبلی ہمارے مسائل بھول گئے۔ ممبران اسمبلی بات سنتے ہیں نہ گیس کے دفتر میں شنوائی ہے، مہنگی لکڑیاں خریدنے کی طاقت بھی نہیں، شدید سردی میں کہاں جائیں۔ گیس کا مسئلہ گیس ہونے کا نہیں، ردا پکا نہیں تھی نہ، سارا دن بال سارے بکے ہیں، ایسا لکڑیاں بھی نہیں سے گن سکتے، غریب ہیں، پیسے سے کیا کروں۔ گیس تو ہمیں فراہم کی جائے، لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ٹائم پہ آتی ہے وہ تو ہو، وہ بھی نہیں ہوتی ہے، 5 منٹ آتی ہے جھلک دکھا کر چلی جاتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا اسد چانڈیا کی یقین دہانی پر خواتین نے احتجاج ختم کر دیا۔ متعلقہ محکمہ ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، تو آج سے ان کا جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے 6 سے 9 بجے تک فل پریشر کے ساتھ، اور 5 سے شام 9 بجے تک وہ بھی فل پریشر کے ساتھ۔ مین وائل بھی گیس جو ہے وہ ہوگا 5 بجے انشاءاللہ، اس کو ہم دوبارہ مانیٹر کیا جائے گا۔ یہ جو شیڈول ہے یہ ایکسین صاحب کی طرف سے اپروو ہوا ہے۔ بڑو پنجاب کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ نئے پاکستان میں بھی اسکولوں کی حالت نہیں بدلی۔ 1986 میں قائم ہونے والے کیہوڑ پکا کے ایلیمنٹری اسکول کو ابھی تک راستہ نہیں مل سکا۔ طلباء اور طالبات کھالوں اور فصلوں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دیکھیے عاشق حسین قریشی کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کیروڑ پکا میں اسکول بنے 36 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک راستہ نہ بن سکا ہے۔ طلباء و طالبات کھال اور فصلوں میں سے گزر کر اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ بچوں نے کتابیں اٹھا کر محکمہ تعلیم کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں بچوں کی تعداد 500 سے کم ہو کر 306 رہ گئی ہے۔ یہ 30 سال ہو گئے اسکول کو بنے ہوئے، اب یہ ایلیمنٹری بھی ہو گیا ہے، لیکن یہاں راستے کا بہت درینہ مسئلہ ہے۔
हमने मुतद्दद बार इसी करोड़ पक्का को दरखास्त दी लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। हम गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे बैग फट जाते हैं, किताबें गिर जाती हैं, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमारी टीचरों को भी। स्कूल टीचर रास्ता न होने की वजह से तबादला करवा लेती हैं। तुलबा ने बताया कि खाल और फसलों में से गुजरते हुए गिरकर अक्सर जख्मी भी हो जाते हैं। फसलों से गुजरते हुए वैसे भी डर लगता है, कई बार किताबें पानी में गिर जाती हैं। बच्चों के लिए जो रास्ते का देरीना मसला है, तो कई दफ़ा जो है ना बच्चे आते आते जो है ना खाल में गिर जाते हैं, उनके कपड़े भीग जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। लिहाजा हमारी जो है ना गुजारिश है अफसरान बाला से कि हमें जो है ना रास्ता दिलवाया जाए। शहरियों का कहना था कि इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि अगर हुकूमत मिली तो नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक एक स्कूल का रास्ता ना बन सका है। कैमरामैन यासिर बरियार के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोई न्यूज़, कैरोड़ पका। हुकूमती नाकिस पॉलिसियां। कोटद्दू में तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर सड़क पर आके घर चलाने के लिए सब्जी और फलों की रेडी लगा ली। इज्जत की रोटी और मकान मुझे चाहिए मेरे कप्तान, मेरी भी थी एक दुकान, नाम रहा ना उसका निशान। ये थी तहरीक इंसाफ के वर्कर की दास्तान। वजीर आज़म इमरान खान का साथी नौकरी न मिलने पर सड़क पर आ गया। कोटद्दू के रिहायशी इरफान अंसारी ने 24 साल तहरीक इंसाफ को दिए। चलता रोजगार बीवी का 5 मरले का प्लाट पार्टी की नजर हो गया। इमरान खान के वजीर आज़म बनने के चौथे साल इरफान अंसारी का सबक जवाब दे गया। सारे ख्वाब टूट गए, मायूस होकर रेडी लगा ली। उसका कहना था कि उसे नौकरी मिली ना ही कर्जा। वजीरों और मशीरों ने वजीर आज़म से मिलने भी नहीं दिया। जुनून ग्रुप के हमरा मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। आज मेरी शमूलियत को अरसा 23 साल गुजर चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, गरीबों से अपना लुटेरों से लेंगे, गरीबों को देंगे। 24/12/2020 को मैंने कर्ज अप्लाई किया। आज तक मुझे कर्ज न मिल सका, ना ही किसी बैंक की तरफ से कोई रब्ता किया गया, ना ही किसी और हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से कोई रब्ता किया गया। इरफान अंसारी ने बताया कि वर्करों को नजरअंदाज कर दिया गया। एमपीए ने मजाक उड़ाया, अगर इसकी ना सुनी गई तो वो बीवी बच्चों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोही, कोटद्दू। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तनवीर शेख कहते हैं पॉलिसी रेट्स बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। मलिक अमजद की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में इजाफा कर दिया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां तनवीर शेख का कहना था कि मार्कअप रेट का इन्हिसार पॉलिसी रेट पर मुनहसर है। इजाफे के बाद पॉलिसी रेट 9.75 हो चुका है, जिससे महंगाई का मजीद तूफान आएगा। 3 पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्होंने दी तो मुतवातर बढ़ रहा है। पहले 100 बेसिस बढ़ा, फिर 75 बेसिस बढ़ा और अब फिर 75 बेसिस बढ़ा है। और जिस कदर ये बढ़ेगा उस तरह मार्कअप रेट कारोबार के लिए बढ़ेगा। इन्होंने मजीद कहा कि पॉलिसी रेट बढ़ने से मार्कअप रेट्स भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ जाएंगे। जब कॉस्ट कम होगी तो कारोबार बढ़ाया आसानी से जा सकता है। जब भी हम कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं, जो फिजिबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स आजकल लग रहे हैं उनकी फिजिबिलिटीज 6 माह पहले या साल कबल बनी थी और वो उस वक्त की पॉलिसी रेट के बेसिस पर बनी थी। मियां तनवीर शेख का ये भी कहना था कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि कारोबार मुतासिर न हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ठंड बढ़ी तो लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। मियांवाली के शहरियों ने किया गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख। उनका कहना है कि यहाँ से मुनासिब कीमतों पर सामान मिल जाता है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली के लंडा बाजार में गहमा गहमी महंगाई के सताए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि मार्केट और लंडा बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट से सामान खरीदना गरीब अफराद के लिए नामुमकिन हो गया। ये से माल लब्ध सस्ता, सारी अवाम रहते पे लंडे बाजार चुथे 100 ते 150 200 का सामान है, ये तो सस्ता मिल बने तो अवाम इतना नहीं है। महंगाई ज्यादा है इस वजह तो आ रहा है, 200-300 का 200 लंडे वाला चीज मिल जाती है। लंडा बाजार में लगाए गए जैकेट, कोट, चादर वगैरह के स्टॉल पर मौजूद शहरियों ने बताया कि आम मार्केट से 2000 रुपए वाली स्वेटर जर्सी लंडा बाजार में 100-150 रुपए में मिल जाती है। कोट घेंदे पाया जर्सियां इतने मुनासिब रेट ते मिल वेंदी है, बाजारू 3000 दी मिलदी ते 100-150 दी मिल वेंदी है। इसमें राय बात है मजबूरी तो नहीं तो खुशी तो कौन आंदा है, मजबूरी तो हर बंदा आंदा है। दुकानदार का कहना था कि लंडा बाजार में इंतहाई सस्ते दामों पर गर्म मलबूसात दस्तयाब हैं, जिसके बायस लंडा बाजार में रश बढ़ जाता है। बाजार से काफी ज्यादा यहाँ पे रश होता है क्योंकि यहाँ पे रेट मुनासिब है। 2000-3000 वाली यहाँ पे चीजें होती है ब्रांडेड। एक तो चीजें अच्छी, दूसरा रेट हमारा जायज होता है। 100-150 की हम जर्सी दे रहे हैं 250 रुपए की,
और माल भी हमारा सारा ब्रांडेड अच्छा माल होता है, बाजार से काफ़ी अच्छा माल हम बेचते हैं, तभी लोग यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है, पैसे भी बच जाते हैं। सर्दी में इजाफे के बायस लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। डॉलर रेट्स के गैर मुस्तहकम होने से कारोबारी शख्सियात परेशान हैं। साबिक एमपीए मरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट और डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कारोबारी लिहाज से। कोई भी बंदा इस वक्त प्लानिंग नहीं कर पा रहा किसी भी लिहाज से। देखें, जब डॉलर बढ़ेगा तो हर चीज़ उसके साथ हमारी अटैच्ड है, क्योंकि हमारा सबसे बेस जो है डॉलर की वो ऑयल के साथ है। जब हमें ऑयल की सूरत में हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, जिससे हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिजली, हर चीज़ तो हमारी उसके साथ लिंक्ड है। तो जब ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इतने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ये लोग, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई गिरफ्त नहीं है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर। कोई बंदा प्लानिंग नहीं कर सकता। अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें, कोई भी अगर कोई फर्ज करें हमने शिपमेंट बाहर भेजनी है या कोई मंगवानी है तो हम लोग उसके ऊपर प्लानिंग नहीं। रहीम मियां खान में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का बाजारों का दौरा, सड़कों की मुरम्मत और तजावुजात के खात्मे का जायजा लिया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी रहीम मियां खान मियां एजाज़ामा ने जामिया कादिरा रोड, अनारकली बाजार और अकब न्यू सादिक बाजार का दौरा किया और ताजरों से मुलाकात की। मियां एजाज़ामा का कहना था कि बल्दियाती अदारों की बहाली के बाद ना ही फंड्स दिए गए और ना ही ऑफिसर्स ताउन कर रहे हैं। पूरे शहर को साफ रखने के लिए सिर्फ 250 का अमला है, अपनी मददगाह के तहत सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं। बाजारों को अगर खुला करना है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ हमारे जो ताजर भाई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें वो अमले के साथ ताउन करें, और तजावज़ात जो है जो ताजर भाइयों ने अपनी दुकानों से बाहर तजावज़ात किए उसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी ये जब तक दोनों तरफ से मामलात इकट्ठे नहीं चलेंगे अवाम के ताउन के साथ, तब तक मैं नहीं समझता कि हम ना सफाई हम बेहतर कर सकते हैं ना हम तजावज़ात पे काबू पा सकते हैं। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने तजावज़ात के खात्मे और सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए ताजरों और शहरियों से ताउन की अपील कर दी। कैमरामैन अनवर सवेर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम मियां खान। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का फोर्ट मनरो का दौरा, कैडेट कॉलेज के तामीराती काम का जायजा लिया। रेजिडेंट इंजीनियर पाकिस्तान एयरफोर्स तैमूर हसन ने ब्रीफिंग दी। अली मूसा रजा की रिपोर्ट। खर फोर्ट मंडलो में 800 केनाल पर कैडेट कॉलेज के साथ वेलफेयर सिटी भी बनेगा। पंजाब सरकार ने 1 अरब रुपए के इब्तदाई फंड्स फराहम कर दिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद के हमरा कैडेट कॉलेज के तरक्याती मंसूबा का जायजा लिया। जून तक पहला मरहला मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल KSDA मकबूल अहमद, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद इकराम मलिक, डायरेक्टर डेवलपमेंट अबैदुर रशीद, SC पब्लिक हेल्थ भी मौजूद थे। इसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फोर्ट मनरो कैडेट कॉलेज को लाया गया है जी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविशों से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके ऊपर की एग्री किया है। ये कैडेट कॉलेज पूरे इस इलाके के लिए, बिलखसूस साथ बलूचिस्तान का एरिया लगता है, सिंध का लगता है, और ये पंजाब का जो साउथ पंजाब का इलाका है उसके लिए बड़ा आइडियल लोकेशन है। कमिश्नर DG खान का कहना था कि फोर्ट मनरो खत कैडेट कॉलेज खित्ते के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कैडेट कॉलेज को 3 हिस्सों में तामीर किया जा रहा है। फोर्ट मनरो खत कैडेट कॉलेज में फलाही और तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। रहीम मियां खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी है। सदारती उम्मीदवार बशारत अली हुंदल और उनके पैनल के एजाज में तकरीब हुई। बशारत अली हुंदल का कहना था कि उनका पैनल जीत के बाद सिविल सोसाइटी की खिदमत करेगा। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम मियां खान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। सिविल सोसाइटी भी अपने उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। सदारती उम्मीदवार बशारत अली हुंदल और इनके पैनल के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। बशारत अली हुंदल का कहना था कि वो सिविल सोसाइटियों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जबरदस्त एक संगम था ये आज की महफिल सिविल सोसाइटी और वकला का, तो मैं इनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ, पूरी सिविल सोसाइटी को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जीत के सिर्फ वकला की ही नहीं पूरी सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। वकला की इज्जत और काले कोट का वकार वो बुलंद करना, और जहां तक मुझसे हो सका, जिस हद तक मुझसे हो सका, काले कोट के लिए मैं आखिरी हद तक जा सकता हूँ। तकरीब के मेजबान एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मकसूद अहमद संधू का कहना था कि वकला ने दावत में शिरकत करके इनके वकार में इजाफा किया। मैं वकला साहबान मेरे बड़े मैं बहुत पसंद करता हूँ, इस पेशे का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह चौर साहब का और बशारत हुंदल साहब का ग्रुप इंशाल्लाह जीतेगा।
तकरीब में सदर रहीम खान चैम्बर जवेद इरशाद, सीनियर वकला और सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मरकजी अंजुमन ताजरान कपड़ा मार्केट उर्स शरीफ के साल 2022 के इंतखाबात उर्स शरीफ में हाजी चौधरी मोहम्मद तारिक सदर मंतखब हो गए। उमर खुर्शीद सहमन जनरल सेक्रेटरी मंतखब हुए हैं। ख्वाजा मोहम्मद सलीम सैयद नूर शाह नायब सदर मंतखब। मलिक जमशेद अहमद गौरी फाइनेंस सेक्रेटरी मंतखब हुए हैं। मोहम्मद अकमल शेख की जानिब से 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाओ। मुल्तान में महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। पीर कॉलोनी मुल्तान में वैक्सीनेशन पॉइंट कायम कर दिया गया। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जबकि पीर कॉलोनी में वैक्सीनेशन पॉइंट पर तमाम सहूलियात मैसर हैं। तमाम लोग आएँ, आकर अपने 12 साल से ऊपर तमाम अफराद की वैक्सीनेशन करवाएं और 50 साल से ऊपर जो अफराद है उनकी पोस्टर डोज लग रही है वो भी आकर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। यूसी मेडिकल ऑफिसर सैयद मोहम्मद कामरान का कहना था कि 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि हेल्थ टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाने से मुतल्लिक शहरियों को आगाही देती हैं, ताहम शहरी यहाँ से बासानी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 12 साल से बड़े तमाम लोगों के लिए यहाँ अपने इलाके में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा रहे हैं और तमाम उनको सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं। घर के करीब वैक्सीनेशन पॉइंट बनने से अब शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए दूर सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ता। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया। मुल्की यूनिवर्सिटियों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि हम दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 154वीं पोजीशन पर हैं। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का मसला है। यूनिवर्सिटी में यूएनए के मुकर्रर करदा हदाफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। यूआई ग्रीन मैट्रिक की दर्जा बंदी माहौलियाती पायदारी, तालीमी तहकीक, मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में की गई। यूनिवर्सिटी में इमारतों का ढांचा ऐसे बनाया गया है जिससे कम से कम बिजली इस्तेमाल होती है। फिर वाटर रिसाइकलिंग पे कि वाटर कंजर्वेशन पे आप क्या प्रोग्राम कर रहे हो और वाटर रिसाइकलिंग कैसे है, वाटर का एफिशिएंट यूज़ की अप्लाइंसेस आपके पास कौन कौन सी हैं, फिर पाइप्ड वाटर कैसे कंज्यूम हो रहा है और परसेंटेज ऑफ एडिशनल हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक को भी उन्होंने फैक्टर इन किया था। ये जो आखिरी थी कि उसमें आपने कैसे उसको एफिशिएंटली यूज़ किया वाटर को। डॉक्टर आसिफ का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी में पानी की बचत और बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से भी इकदामात किए गए हैं। प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी अपना किरदार खूब निभा रही है। जलालपुर पीरवाला में कैंपस मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां 300 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। जलालपुर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 100% कवरेज हमने कर ली कि आप लोग कुछ उसमें से गए भी थे। वीट कैंपेन भी हमने की, वहाँ पे अब तकरीबन 300 एकड़ के करीब हमारे पास वीट लगी है। टारगेट हमारा ये कि जी 10,000 टन मन 10,000 मन से ज़्यादा हम अपनी जो पैदावार है इस साल का हमारा टारगेट है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली, डॉक्टर शफकत सईद, डॉक्टर मुकर्रब अली और डॉक्टर वजीर भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान।